اپنے پسندیدہ شاعر کی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے اینا مشاعرہ آج ہی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ صدر جلسہ سے گزارش کروں گا کہ اس تہنیتی نشست کی صدارت کے فرائض انجام دیتے ہوئے اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ابھی نہیں، ان کو بھی دکھنا ہے۔ اس وقت کرناٹکا اردو اکیڈمی کے صدر محترم، میرے رفیق، میرے عزیز، یہ اکثر ان کو کبھی کبھی شاعری کیا ہے؟ دلی جذبات کا اظہار ہے۔ دل اگر بیکار ہے تو شاعری بیکار ہے۔ اب وہ جذبہ جوش کبھی کبھی آ جاتا ہے، کبھی کبھی حافظ نوازی میں داخل ہو جاتے ہیں، گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ اصل میں پوری طرح شاعری ہیں، لیکن تھوڑا ابھی باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ ایک دن وہ بھی آئے گا انشاءاللہ، یہاں ٹھہر کے انشاءاللہ کلام سنائیں گے انشاءاللہ۔ مولانا شمیم سالک صاحب مستقبل کے شاعر وہ ہیں۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ وہ ایک آشیانہ بنائے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ سب کو بھی نہیں چنتا، کسی کسی کو چن لیتا ہے۔ بس ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ تو ہمارے آدمی کی بات نہیں ہے۔ اب ان کا نام کراٹے کے نام سے یاد کریں، اب آپ ان کو پوری لوگ جانتے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھیں اردو کے کرم فرمائی ہے، یہ سب اردو کے نام پہ تو ہماری خواتین حضرات بہنیں بھی وہاں پر آئیں، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اردو کی محبت آج دور ہے، انجم صاحب کی ایک محبت لے کر بس ان کے ساتھ انہوں نے محبت کی، بڑی خوشی ہوئی، چہرہ بھی ملتا جلتا وہی ہے، جو ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ ہو تصویر ہمارے سامنے نظر آ رہی۔ اب دیکھیے دلہا تو دلہا ہی ہیں۔ اب آج کا یہ پروگرام نہیں بلکہ اکثر رہتے ہی ہیں، اردو سے محبت رکھتے ہیں، دنیا لاکھ بھی کہے، کچھ بولتی ہے، بولنے والا بولتا ہے، لیکن یہ اپنا کام کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت دن سے پوچھ رہے تھے کہ ایک پروگرام حافظ صاحب کرنا، الحمدللہ وہ آج عید ملن کے نام سے ہم مل رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ ملنا، ابھی تو چیئرمین صاحب مل گئے، ابھی پروگرام انشاءاللہ بہت ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، بندہ بھی ساتھ میں انشاءاللہ، خوب پروگرام انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ اب اسی طریقے سے نظامی صاحب تو ماشاءاللہ یہ ہول سیل نہیں، 22 مشاعرے کا اعلان کرے، 22 نظامت بھی انہوں نے پوری کی ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب آپ تمام تو اردو کی محبت رکھتے ہیں، تو شعراء کا نام، شعراء کو بھی قریب میں لے لانا، ایک الگ سے اسٹیج رکھنا۔ دوستو سنیے میری بات، اردو اکیڈمی اس وقت حافظ کرناٹکی کے زمانے میں کنڑا اینڈ کلچر سے سلیکشن ہوا تھا ہمارا، یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے کنڑا اینڈ کلچر، اس ڈپارٹمنٹ سے ہٹانے کے لیے جو مہم چلائی گئی وہ اللہ جانتا ہے۔ برکیف کبھی کبھی چور کے ہاتھ میں چاوی کہتے ہیں، وہی لوگ تھے ان کے ہاتھ میں چاوی تھی، وہ انہوں بولے الگ کیوں کرنے کا، الگ نہیں ہو سکتا، تو برکیف اس لمبی داستان مخالفت کرنے والے قوم میرے سے اوپر کا چیئرمین خلیل مامون تھے، اور کنڑا تحریک نکل رہی تھی، یہ لوگ خود کر رہے ہیں تو ہم کو کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ خاموش ہو گئے، وہ ان کو مخالفت ہو رہی ہے۔ ارے اگر یہ مائنورٹی میں اگر چلے گئے، اگر یہ مائنورٹی میں ڈپارٹمنٹ میں اگر یہ چلے گیا تو یہ ترقی کریں گے۔ آج بھی کنڑا اینڈ کلچر کے کنڑا اینڈ کلچر میں اکیڈمی کو 30-50 لاکھ کے اندر ہی ہے۔ میں جب چیئرمین بنا تھا 20 لاکھ روپے تھے، 30ویں 1 کروڑ تک پہنچا تھا، آج تو 2 کروڑ پہنچے ہیں۔ خدا کرے کہ یہ 5 کروڑ بجٹ تک ہو جائیں، 10 کروڑ بجٹ تک ہو جائیں، اس لیے کہ ان کے اوپر جو بیٹھے ہوئے شخصیت ہے وہ اچھی مضبوط شخصیت ہے، جو الحاج ضمیر صاحب ہیں، ان کے اندر قوم اگر میں سمجھتا ہوں پورے کرناٹک میں اگر کوئی واحد شخص ہے جو اپنے پیسے سے سیاست کر رہا ہو وہ بیڈزر ضمیر ہے، واحد شخصیت۔ اگر کوئی واحد شخصیت، اس کے علاوہ کوئی شخصیت کا نام ہم نہیں لے سکتے۔
हमको सियासत मालूम नहीं, एक ही चीज मालूम है। बहुत अच्छा, इंशाअल्लाह जैसे चेयरमैन साहब बोलेंगे उनकी उमंगें पूरी हो जाएंगी। मेरा मकसद ये था कि उस मौके पर हम दाखिल हुए तो हम सोचे कि कुछ करना। अगर यह अकेडमी अगर वहां पर रहती, सिलेक्शन प्रोफेसर का होता था, वहां लिखा हुआ है कन्नड़ा एंड कल्चर में ऐसे आदमी को नहीं बनाते। प्रोफेसर मतलब पूरा सीफर। प्रोफेसर का माना क्या है? पूरा सीफर, उसे प्रोफेसर कहते हैं। 1.5 लाख तनख्वाह लेने वाला रहना, 1.5 लाख तनख्वाह 3 बच्चों के खातिर लूटना, जिंदगी पूरी बर्बाद करना, ऐसे प्रोफेसर उर्दू के नाम पे उर्दू की रोटी खा रहे। इनको वहां इंतखाब होता था। आप हाफिज कर्नाटकी ने कुछ भी नहीं किया, फौजिया बक्के चलेगी, अल्लाह को जवाब दी। लेकिन एक काम किया है कि अकेडमी को लाकर आपकी माइनॉरिटी के हवाले किया है, जाओ आप तरक्की करो। कुछ भी नहीं किया है। अकेडमी को सत्याग्रह टाउन हॉल के सामने होता था। खुदा की कसम रात नींद नहीं आती थी उस मौके पर मुझे, क्या मुझ पर गुजरता था। हालांकि वो बीजेपी की ताकत थी। है, चलो मैं अपने उन्वान को समझा रहा हूं कि उस मौके पर आज आपके रुकन बने हुए हैं, आवाज दे रहा हूं। मुश्ताक सईद को कहो, अगर लिखा खूब उसने, उसको कहो अगर उस मौके पर हाफिज कर्नाटकी, अगर वो कमेटी वहां पर अगर माइनॉरिटी में नहीं आती तो जिंदगी में तुम मेंबर नहीं बनते थे। कन्नड़ा एंड कल्चर में मेंबर बनने के लिए भी डॉक्टर चाहिए, प्रोफेसर चाहिए, किताब चाहिए। अल्लाह का करम है, ऐसे मोहब्बत रखने वाले शख्स को अल्लाह पाक ने, जैसा उन्होंने खुद कहा, ये तराफ किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफिल इससे बढ़कर और सादत क्या हो सकती है। अल्लाह का बख्शा हुआ एजाज है ये, इंसानों की बख्शी हुई सौगात नहीं। एक अल्लाह का बख्शा हुआ एजाज है ये, इंसानों की बख्शी हुई सौगात नहीं। एक उम्र की मेहनत के सिले में मुबीन हक पाया है तूने, खैरात नहीं। हक क्या है? हक पाया है तूने, खैरात नहीं। आज पुराने जितने आईपीएस आईएएस अपने आप को कहते थे कि वो सीट पे हम आएंगे, मुबीन ने साबित करके दिखाया, उर्दू की मोहब्बत अगर रखो तो वो कुर्सी पे बैठ सकते हो। अल्लाह चाहा मोहम्मद रफी धारवाड़कर को भी चेयरमैन बना सकता है, इसकी बस की बात नहीं, कोई मसला नहीं। मोहब्बत की जरूरत है, अकीदे की जरूरत है। उन्होंने अपने सारे अकीदे, अब कर्नाटक बोल रहा है, मेरी आवाज सुने, शिमोगा कह रहा है अरे कैसे बनाया गया, गुलबर्गा कह रहा है। ये सुनो, आदमी का डॉक्टर होना पूरा सी नहीं, प्रोफेसर बोलते नहीं, पूरा सिफर होना जरूरी नहीं है। इंसान अगर उसके दिल में उर्दू की मोहब्बत है, एक और आपके सामने कहता हूं, उर्दू एकेडमी से बड़ी बड़ी उम्मीद है, ये गलत, आपके वादे गलत। एक नेमावली है वहां की, नेमावली, उसूल, ज़वाबित, क़वानीन 1977 में कायम होती अकेडमी है, 77 में कायम होती है। अकेडमी का मतलब क्या है? लोगों की तहरीक को ब्रेक लगाना। चुप ऐसे ही एक मुशायरे करते रहो, गीता गाते रहो, बैठते रहो, ऐसा नहीं है। आप जो बोल रही, कोई आया चेयरमैन साहब हमारे उर्दू स्कूलों का क्या होगा, आपका गलत बयान है। अकेडमी से उर्दू स्कूल का क्या ताल्लुक है? जबकि तुम्हारी गली के अंदर स्कूल है। जब्बार साहब को 50,000 तनख्वाह आ रही है, सलीमा आपा को 64,000 तनख्वाह आ रही है, करीम आपा को तकरीबन 50,000 तनख्वाह आ रही है। 2.25 लाख रुपए स्कूल को गवर्नमेंट खर्च कर रही है। मोहल्ले के 14 बच्चे वहां जा रहे हैं, मोहल्ला उसका जिम्मेदार है, अकेडमी उसकी जिम्मेदार नहीं। इससे क्या ताल्लुक है? अकादमी का मतलब मुशायरे करना, नोट कर लो, लिखा हुआ है, सेमिनार करना, बेदारी पैदा करना। एक बच्चा आया, यहां खड़ा है, एजाज करो,
पढ़ो पढ़ो बेटा पढ़ो। पहले क्या था रिवाज, कोई शायर पढ़ रहा तो ये लोग ही अब हमारे सर के ऊपर भी गए, उनको मिल नहीं सकते आप, अपॉइंटमेंट लेना जरूरी, चेयरमैन साहब को मिलना तो आप, हमने अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, होटल में मिल सकती। अब ऐसे लोगों का दौर खत्म हो गया, मुबीन का दौर शुरू हो गया। अब आम आदमी चाहिए, आम आदमी चाहिए। अब उर्दू की फिक्र, मैं वही कहता हूं, एकेडमी का मतलब उर्दू स्कूल नहीं, ये गलत, निकालो। उर्दू स्कूल में प्रोग्राम देंगे, हम कर सकते हैं। उर्दू स्कूल आप बात कर रहा कि क्या चेयरमैन कर रहा, सो काम वो चेयरमैन के नियमावली में नहीं है, इसकी जिम्मेदारी है ही नहीं, सवाल ही नहीं। हम वहां बैठकर एकेडमी को लाए इस जगह, अगर चाहे तो मिनिस्टर कुछ कुछ हक दे सकते हैं, वो हक उर्दू स्कूल का नहीं मिल सकता। उर्दू स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ती है, डिपार्टमेंट अलग है उसका, उस अवेयरनेस प्रोग्राम ला सकते हैं, वो भी कितने शायरों को छीन कर नहीं। चिच्चा के माल पर फुप्पा की बरसी नहीं चलती, ये फखत शोरा, शोरा को दो वजीफा, उसकी बीमारी में वजीफा दो। और एक गुजारिश करता हूं, कर्नाटक के शोरा कोने में चले गए हैं, दर्द से कह रहा हूं, बस किसी एक आदमी को लाकर मुशायरे करना। कर्नाटक आज बेंगलुरु के अंदर कितने शोरा को तुमने दफन कर दिया है, जिंदे दफन करके रखा है, अभी अब है शोरा हमारे। मैं आपसे आजिज़ाना हाथ जोड़ के कहता हूं, उन शोरा को बुलाइए, प्लेटफॉर्म पर लाइए, लिखवाइए, उनकी किताबें लिखवाइए, ये सब शोबाजी के किताबों को खत्म कीजिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, दरखास्त कर रहा हूं, मैं कहता हूं नौखे शोर आगे बढ़ो। कोई शायरी बहुत मुश्किल फन नहीं है, मैं अक्सर कहता हूं जब हम शायरी शुरू करें तो जरा परेशानी शुरू होगी लोगों को। शायरी मुश्किल फन नहीं, पहले सबसे पहले उन शोरा को कहता हूं बाहर जानो, बाहर जानो। मैं कहता हूं क्लासेस लो, आप बेंगलुरु के चेयरमैन नहीं, पूरे कर्नाटक स्टेट के चेयरमैन हैं आप बीदर भी जाना है, शिमोगा भी जाना है, बल्लारी भी जाना है। मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम करो, एक ऐसा मुशायरा करो, कुल रियासती पूरे जिलों की नुमाइंदगी चाहिए। यहां अगर देखेंगे तो कुल जिले की नुमाइंदगी चाहिए हमको। ऐसे नेटवर्क को तेज करो, रफी जाकर ले 50,000 काम कर। अगर इस किस्म के नेटवर्क पूरे कर्नाटक में, अगर ये निकल के कहीं कर्नाटक के कोई हिस्से में जाके काम कर रहे हैं, आप साथ दो उनका। आदमी अपने घर का काम छोड़कर कोई नहीं आता। आज एक बस आज हमारे दरमियान आए, माशाअल्लाह, देखो एक छोटा सा इंसान, जिसे छोटा समझते, आपके नेटवर्क में अभी देखिए मुझे लंदन से फोन आया, लंदन से मैसेज आया, मुबारक हो कि कितना अच्छा बस्तवी साहब पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल जिंदा है, हाँ? लंदन से आ रहा है, कितने दूर दूर से मैसेज आए, यूपी से मैसेज आया, खाली वही देखते बैठ रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नेटवर्क को बहुत अच्छा संभाला है। आप उसको संभालो, वो आपको संभालेंगे इंशाअल्लाह। संभालो एकेडमी, बहुत माशाअल्लाह मुख्तसर का, ये शोरा की असट है, शोरा की जागीर है, शोरा के अपने मकाम को आगे बढ़ाने की चीज है। इसे छोड़कर उर्दू इंप्रूव करो, वहां स्कूल बंद हो गए, स्कूल बंद करने से असातिज़ा, खुदा ताला ने असातिज़ा को चुन लिया है। उनके पूरे के पूरे असातिज़ा कर्नाटक में, जब मैं भी आई वॉज ए टीचर, उस मौके पर 24,000 असातिज़ा थे, 24,000 असातिज़ा थे। आज घटते 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 12-13,000 को आ गए हैं। स्कूल बंद होते जा रहे हैं। 18,000 नहीं, वही आपका जिसने जिंदगी में स्कूल को नहीं गया, फयाजुद्दीन मेंबर बना हुआ है, वही आपके सामने कह रहा है जिंदगी में स्कूल को नहीं गया, इनका मेंबर बन गया वो। अब ऐसे लोगों के साथ पूरा कर्नाटक देख रहा है पिक्चर। मैं स्कूल टीचर हूं, आज मेरे पास भी स्कूल है, जाती स्कूल है, मैंने इस्तीफा देकर स्कूल शुरू किया। मैंने ये नहीं कहता मैं, लेकिन
ऐसी तादाद घटते चले जा रही, बंद हो रही है सतदा। ये तो दर्द की बात। आप अवेयरनेस प्रोग्राम, बहुत अच्छी राय दिए, अवेयरनेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। चेयरमैन साहब बहुत उम्मीदें, ऐसा नहीं कि उर्दू हाल उर्दा, टेंशन मत लो। मसला यह है जगह डिक्लेयर करना। आप गवर्नमेंट की जगह के पीछे पड़ेंगे। गवर्नमेंट जगह मुख्तलिफ मसाइल वाली जगह होती है। अगर वजीर मौसूफ दिल करके कोई खास जगह के अंदर अगर इशारा करके अगर काम अगर शुरू हो जाए तो हो सकता है। अगर ऐसा टेक्निक करो कि आपके हाथों से काम शुरू हो। और दोस्तों, हमारी हालों की कमी नहीं। अब हमारे चेयरमैन साहब से हमें अच्छी उम्मीद क्या है। दाग को मैं जबरदस्ती से कहा इनसे फोन पे कि दाग को बुलाना है आप, कि हम चाहते हैं हमारे शोराबाज। देखिए आए दाग साहब, हम आए फाइलातुन मफाइलुन फेलुन में पढ़ने लगे। जब पढ़ते ना दिमाग में आ जाता है। अरे पूरी चीजें हम लोग शायरी करते हैं, शायरी करना चाहते हैं आप तो शायरी के अंदर मुख्तलिफ नगमों को भी सुनना, साहिर साहब के गानों को भी सुनना, उसके बगैर आपको शायरी नहीं आती। साहिर साहब के गानों को भी सुनना। आप बोले टोपी वाले गाना सुन रहा, ये नहीं चलेगा। लेकिन आपको देखिए, फाइलातुन मफाइलुन फेलुन, ये कहां की चले आता है, कहां गाना है वो, आपने पढ़ा ना, कोसा बहर पढ़ा ना। फाइलातुन मफाइलुन फेलुन, जख्म पर जख्म खाए जाते हैं। मतलब बन रहा है जख्म पर जख्म, किसके जख्म मालूम नहीं, जख्म पर जख्म खाए जाते हैं, फिर भी हम मुस्कुराए जाते हैं। और देखिए दर से, अपनी रातों में रोशनी करने दिल हमारे जलाए जाते हैं। जिंदगी के हसीन जिंदगी। अब ये क्या है, पहले सबसे पहले इसको रखना आप, फाइलातुन मफाइलुन। ये जब तक हमारे नए शोरा एक बहर, ये जो बहर है जिहाफ वाली है। मैं आपको सालिम कभी वक्त मिलना चाहिए, फिर भी मैं चाहता हूं मेरे कोई ना कोई मुशायरे में मैं एक ना एक सबक पेश करूं। देखिए सालिम बहर कहलाती है डक 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 डक, फऊलुन 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 फऊलुन, ये सालिम बहर कहलाती है। इसे बहरे मुतखारिब कहते हैं, बहरे मुतखारिब मुस्मन इसका नाम है। ये फऊलुन 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 में लिखा है, हाली में बहुत लिखा। फऊलुन ऐसी चीज है, सुन लो, शायरी भी हो जाए, मुशायरा भी हो जाए। ये हमारे उस्तादों का तरीका हमारे मुशायरों में होना चाहिए। इकबाल मुशायरा पढ़ते थे और मुशायरे के खैदे को भी पेश करते थे। मीर तकी मीर ने मुशायरा पढ़ा और खैदे को भी पेश किया। ऐसा नहीं कि खाली सिर्फ मुशायरे आवाज सुनते रहे। कभी कभी क्या होता है, ये फऊलुन फऊलुन फऊलुन, चार फऊलुन। कभी कभी हम, अब देखिए वजन, फऊलुन 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 फऊलुन, ये आवाज में बैठता है। वो नबियों में रहमत लखा, ये तुम्ही मेरे मंजिल की आवाज, वो गाना फऊलुन 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 फऊलुन, ये चार फऊल कहते हैं इसे, ये बहरे मुतखारिब। अच्छा, इसमें सालिम, ये सालिम कहते हैं, जिहाफ होता है। जिहाफ मतलब तीन फऊलुन आ जाते हैं, आखिरी का फऊलुन को नून निकाल देना। सुनो सुनो, नून नून निकाल देना। नून निकाल देने के बाद ये बहरे मुतखारिबी रहेगी। जिहाफ बहरे मुतखारिब में फऊलुन 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 फऊ फऊलुन 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 फऊ। अब ये क्या है, बिल्कुल तो रब्बे जहां मालिके कुल फका, तेरी शान आली हो क्यों कर बयां। कभी कभी क्या होता है, शायर फऊलुन पढ़ते पढ़ते फऊ को आ जाता है। ये तरकीब सीखना है आपको, मेरी आजिजाना गुजारिश का। अब देखिए, फाइलुन फाइलुन फाइलुन, चार फाइलुन, ये भी बाहर है। देखिए फाइलुन, क्या आप पढ़ते ना, जबकि पैदा हुए हमारे नबी, वो तरस की है, वो तरस में पढ़ लो आप। फाइलुन फाइलुन चार फाइलुन। जब भी कागज पे चलता है मेरा कलम,
फाइलुन 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 फाइलुन, जब भी कागज पे चलता है मेरा कलम, खून दिल का उगलता है मेरा कलम। फाइलुन 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 फाइलुन, जो भी लिखना है लिख कर ही पाता है चैन, कब रवैया बदलता है मेरा कलम। फाइलुन 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 फाइलुन। देखिए नींद, अब इसी तरीके से हर बहर का कुछ ना कुछ होता है। अब देखिए बहर है, 4 फेलुन होती है, फेलुन फेलुन फेलुन, 4 फेलुन, फेलुन फेलुन फेलुन। कोई तकलीफ तो नहीं हो रही मेरे तरफ से? शायरी का सबक है। किधर हो रही? उधर उधर। वो क्या? नहीं कौन की बोल रही? किसी को तकलीफ हो रही है अभी? मैं कलाम भी सुना रहा हूं। हाँ मैं कलाम सुनो। अब देखिए 4 फेलुन, फेलुन 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 फेलुन, 4 फेलुन। ये भी सुनिए, जब तक हम लोग शायरी नए लोगों को आगे नहीं बढ़ेंगे चेयरमैन साहब, बढ़ाना है। हमारे हर मुशायरे में 2-4 नए लोग आ जाएं, इनके लिए मुबारकबाद है। हर और सुन लो, उलमाए किराम देखो कितने दिख रही। जब मैं आया, जैसे चेयरमैन साहब की फोटो दिखी ना, ऐसी फोटो एक आदमी को दिखी, खैर अल्लाह करी करम, मर गया आदमी, वो प्रोफेसर था, वो पेपर में डाल दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि एकेडमी का चेयरमैन है, किसी मस्जिद का मौजन है। उसे मालूम नहीं कि मौजन क्या क्या काम करता, नहला के इसे ढुलाने वाला मौजन नीचे, आखिर में मौजन को रखा नंबर। मैं कह रहा हूं, हम आप उलमाए किराम, उर्दू अच्छी, आज उर्दू हमारी अच्छी कहां है? शायरी हमने कहां से सीखी? ये मदरसों से सीखी है। सुनिए, हमने मदरसों से सीखी है, शायरी मदरसों से सीखी है, उर्दू की मोहब्बत हमने मदरसों से सीखी है। आज ये मजमुआ रात के 10-11 बजे भी आया हो, उर्दू की मोहब्बत मदरसों ने दिखाई है। तो हम लोग चाहते हैं कि आज हमारी लिखाई, हमारी पढ़ाई माशाअल्लाह जो होती है जबरदस्त होती है। चलिए 2-4 जुमले में कह के अपनी बात को खत्म कर लो। चेयरमैन साहब हमारे दरमियान हैं, एक हमारे लिए नई सौगात है, अकेडमी एक नई सौगात है। इंशाअल्लाह मुशायरों के जरिए, कोई आपको कहता क्या जी कल अकेडमी मुशायरे छोड़कर दूसरा करना नहीं है? सुनो, सेमिनार लाजिम है, सेमिनार, यही तो अकेडमी का उसूल है। चलो हाँ, हम कहते हैं आइंदा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उलमा को शायर बनाएंगे। आप मुझे सारा दिन एक कम से कम 3 घंटे दे दीजिए, जब तक आपको लिखने वाले नहीं बनाऊंगा तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। सवाल ही नहीं पैदा, ये बहुत ज्यादा देखो क्या बोलते हैं, एक शायर को लेकर दिखाती हैं आप। ये एक बात याद रखो, एक शायर को पैदा करना नहीं चाहता। सुनो, इसलिए पैदा करना नहीं चाहता, उसकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। और ये इतना मुश्किल काम है, जैसा दूसरी बीवी, पहली बीवी दूसरी बीवी को बर्दाश्त नहीं करती। सुनिए, अब मैं क्या कहता हूं आपको, इंशाअल्लाह, सुनो, अब हम चाहते हैं, नहीं, उर्दू एकेडमी का तहफ्फुज जो है, शायरी है, सेमिनार है, उर्दू है, उर्दू के जितनी उर्दू के साथ जुड़े हुए मामलात हैं, वो इसमें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इनके पास कारगा मांग सकते हैं। कारगा, एक दिन की कारगा। और वहां एक मैं शुरू में गया, एक मौलवी साहब को दिखाया, क्या साहब ये बराबर है क्या, देखो ये हशो के नो, हशो कर बोले, मुझे मालूम नहीं हशो के हटो बोले सो नो, हशो के दिन हशो नवे वो दाग साहब हटो। खुदा के फजलो करम से
मेरी नजर में, अल्लाह माफ फरमाए बोलने पे कुछ मर भी गए, असल में वो शायर ही नहीं थे, वो लोग ग्रामर ही नहीं जानते थे। कर्नाटक में जितने शोराही, माफ फरमाए, गिनती में मिलेंगे हमको जो अरूज जानते हैं। हमारी अदबन गुजारिश है, उलमाए कराम उठो, आप उठो, नात आप लिख सकते हैं, नात लिखने का सलीका आपको आ सकता है, नात का भरम आप जानते हैं, दरूद शरीफ आप जानते हैं, नबी से मोहब्बत आप जानते हैं, कहां आगे जाऊं उसकी रसाई। एक बात, नात लिखना भी बहुत फन होता है, तौहीद और रिसालत का मवाजना जरूरी हो जाता है। तौहीद और रिसालत में थोड़ा फर्क आ जाए वो नात नहीं कहलाती। इसके लिए हमारे चेयरमैन साहब माशाल्लाह आशिक रसूल हैं, बहुत सी नातें लिखते हैं, मैं इनके नाते बहुत सुना भी हूं मैं। तो मैं कह रहा था आपसे, इंशाअल्लाह हम चेयरमैन साहब से इस्तेफादा करेंगे शिमोगा में पहली फुर्सत में इंशाअल्लाह। अभी मैं रोजाना वक्त खत्म कर रहा हूं, ये खत्म कर रहा हूं भाई। देखो 40 बच्चे मेरे पास शायरी, 50 बच्चे शायरी करते हैं, 50 बच्चे करते हैं। मैं ये 4 घंटे से क्लास लेता हूं। मैं 4 बजे से क्लास शुरू होती है मेरी, 5 को खत्म होती है। वो 4 बजे मैं जो जाता हूं मेरे पूरी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैं समझ, वो बच्चे शायरी नहीं, हम जबान करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, फाइलातुन मफाइलुन में गुफ्तगू होती है। मैं चाहता हूं कि इंशाअल्लाह हम लोग एक मर्तबा अपने अपने हिसाब से कुछ बहरें जानो, जिहाफ कैसे होता जानो, 1-2-3 बहर को पकड़ के काम करो, कोई टेंशन मत लो, परवाह मत करो कौन की बोल रहा तू बराबर कर रहा, मैं बराबरिश नहीं बोल रहा। धीरे 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 आज दाग को सुने, इंशाअल्लाह ये दाग के ऊपर मेहनत की गई, दिल्ली में बैठकर दाग ऐलान कर सकता है इंशाअल्लाह। बढ़ाएंगे हम। हसद ज्यादा होता है, हसद के माने क्या है, आखिरी में बोलता हूं, हसद के माने क्या है? हसद के माने ये हैं कि आदमी अपनी खुद एतमादी खो जाता है। उसका मतलब ये है इन्हें आगे आगा तो मेरा क्या होगा। आप परवाह ना करो, आगे बढ़ो, हम आपके लिए जितनी कोशिश हो इंशाल्लाह जरूर करके आपको देंगे। आप तुकबंदी में लिखो, वो सीधी गजल बना के देंगे इंशाल्लाह, सीधी गजल इंशाल्लाह। उसे ओपन निकलो, आप ओपन पढ़ो, कोई मसला नहीं है। यहां बहुत महंगे शायर, अब देखो हमारे एक आदमी को बुलाए 5000 पूछा उन्हें, ये मैं बोला उन्हें 2000 देती, आता क्या बोला नहीं आता, अब उन्हें मुझे मिलता हुआ मैं बोलूंगा उससे, ये गलत। जहां आप अगर आपने शुरू कर दिया, इंशाअल्लाह 500 में शायर आपको मिल रहे हैं इंशाअल्लाह। रफी भाई इस प्रोग्राम से आपको मुबारकबादी दे रहा हूं इंशाअल्लाह। अच्छी आवाज वाले भी हैं, कोई कमी नहीं, करेंगे ना। इरफान साहब साथ देंगे हमारा। आपने मुझे सुना, आज का एक पैगाम सुनने का मौका इनायत किया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। फिर आखिरी उर्दू अकेडमी को मैं मुबारकबाद देता हूं, चेयरमैन साहब को मुबारकबाद देता हूं, उनके हौसलों को मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि जितने अज़ाइम उन्होंने अपने दिल में रखा है अल्लाह उसे शर्फ क़बूलियत से हमकिनार फरमाए।